Hello and welcome. You're watching Morning Markets on Money9, India's first multilingual platform for personal finance from TV9 News Network. I'm Sakshi Batra and this is a show where we give you all the key updates before the market opening so that you can begin your trading day right. तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन का। कल के दिन एक हॉलिडे के बाद दोबारा से मार्केट्स अब स्टार्ट होंगे। कल शिवरात्रि के अकाउंट पर मार्केट शट थे, लेकिन वेंसडे को जो क्लोजिंग हुई थी और जो हैंडओवर मिला था वो हमें पॉजिटिव इंडिकेशंस के साथ ही का था। और आज के लिए जो ग्लोबल संकेत हैं वो भी पॉजिटिविटी के साथ ही मार्केट्स की ओपनिंग को इंडिकेट कर रहे हैं। फटाफट से देखते हैं पहले की हैंडओवर हमें क्या मिला था वेडनेसडे से इंडियन मार्केट्स के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने क्रूशियल जो सपोर्ट लेवल्स हैं उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अपने रेजिस्टेंस के को अभी तक ब्रीच नहीं कर पाए हैं, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 15,250 का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जिससे कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक फर्दर लेगअप मिल सकता है बुल रैली को। हालांकि साइडवेज मोमेंटम, बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेड, लेकिन बुल्स आर नॉट गिविंग येट। तो डेफिनेटली देयर हैज बीन अ पॉजिटिव इंडिकेशन. 0.5% uptick for both the benchmark indices was seen on Friday's trading session towards the close. The Nifty Bank, however, did underperform a bit. It was trading largely in the red, but it recovered some of its losses towards the end of the session. 35,938, just under the 36,000 mark is what we saw the Nifty Bank closing on Wednesday afternoon. Now, when you talk about the broader market space, that has been outperforming. Remember, in the last 1 month alone, we have seen that the mid caps and the small caps have outperformed the benchmark indices as well. So is it a rally that will sustain in the broader markets, and will it be a broad based rally that we will see from here on or not? Those will be the talking points and points to speak to all the experts who will be joining us on Money9 today. So both the indices, the mid cap and the small cap, shut shop with over 0.8 on 0.9% gains, and are trading very close to their record high levels as well. Moving on to understand how the world view is currently, and you can see a clear green screen as far as the US markets are concerned. Remember, in yesterday's trading session also the US markets performed well, and overnight there has been further surge. 2.5% uptick for the Nasdaq. 13,398 is the level at which it actually closed at, and you can actually see most of the tech stocks including Facebook, Apple, even Netflix, all of those stocks were attracting the investors' attention. Both the Dow Jones and the S&P 500 are trading at record high levels. Remember, Dow Jones has also eked out record high levels for the 4th consecutive trading session. So 0.6% uptick for Dow Jones. S&P 500 also trading with over 1% gains in the overnight trading session. So all happy screen, and the reasons behind the sharp uptick in the US markets are twofold largely. First up, that the US government has passed the $1.9 trillion stimulus package to boost the economy to come out of the pandemic's impact, has been signed into a law yesterday. So that's a big positive. The markets had been awaiting it. They were expecting this to happen. It has finally turned into law, and now more than about most of the Americans will now be getting a $1,400 paycheck also from the government. So that is also going to buoy the sentiment as well. The second biggest factor which has led to a push up in the US markets in the overnight trading session is the fact that of course the bond yields are at a comfortable level as well. So all of those things have happened, but the jobless claims data, that is an important factor to track. There has been a better than expected fall in the jobless claims, which actually indicates and gives out the evidence that less companies are now, and fewer companies are now somehow there is going to be a lesser impact on the jobs in the US market, especially when you talk about the cutting of jobs, especially the losses of jobs. They are reducing somehow, and there is a clear sign of the improvement in the economy as well. There has been an uptick in the demand as well, as far as the fuel consumption is increased. So all across we are seeing there has been an improvement in the sentiment, which has pushed up the US markets in the overnight trading session. Moving on to what kind of indications are we getting from the Asian markets then. You can actually see a
a mixed screen right now. There has been an uptick in the Japanese index with an over 1% uptick, which is being seen. 29,533, that's the level at which the Nikkei 225 is trading at. But there has been some retreatment as far as the Hang Seng and the Shanghai Composite is concerned. They had opened up with a higher level, but there is some bit of weakness coming in now for the Hang Seng with the 0.34% weakness currently and 0.30% coming in for the Shanghai Composite as well. So there's been a mixed trade. Of course, the fears around inflation have abated, which actually led the Asian markets to open up in the green. But how long will those gap ups sustain is a big question that everybody is asking about now. Let's move on to understand how the indications are coming in from the Singaporean Nifty index. Of course, it had opened up quite sharply with over 15,400 points. So there's a downtick from that level. But even if you look at this level of 15,392, it may actually indicate a positive start for the Indian market. So we may open up with a gap up, but we'll just have to see whether volatility will seep in, whether the bulls will be able to maintain above that gap up, or will the gap up be sold into. All of those factors also will be key to watch in today's trading session. Moving on to understand how the money market is performing. 72.91 against the dollar. That's what the rupee is trading at. Absolutely flat there, but no surprises. It has been trading in a range, and that's the range what it is holding on to as well. Moving on to the crude oil markets. Remember, yesterday also the crude oil markets had spiked because of the positive sentiments, around it and the improving demand as well. And you could actually see the Brent crude level jumping up to closer to $70 per barrel mark as well. There's been just a slight cool off today, but again, it is still at the elevated level or one of the recent high levels of $70 to the barrel, which we had seen in the previous week session as well. So 0.20% downtick for this one as well. But we'll just have to wait and watch to understand what kind of impact does this have on the fuel prices back home in the domestic markets. Moving on to the stocks that you need to keep in your mind. Idbi Bank, that stock had run up quite sharply on Wednesday's trading session. 5% jump for this stock. Now the bank has been taken out of the prompt corrective action framework by the RBI. तो definitely ये बहुत ही पॉजिटिव खबर है IDBI बैंक के लिए. आज भी इस खबर की वजह से आप यहाँ पर अपटेक्स या फिर एक्सटेंशन ऑफ रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले स्टॉक के बारे में. NBCC इंडिया, यहाँ पर स्लाइट वीकनेस थी वेंसडे के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन कंपनी को एक पॉजिटिव खबर है कि कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं कंस्ट्रक्शन के लिए 2 कूलिंग टावर्स के लिए जो तेलंगाना स्टेट की तरफ से मिले हैं. तो डेफिनेटली ऑर्डर्स मिलना, कंस्ट्रक्शन मिलना, बिजनेस का विस्तार करना डेफिनेटली इंपैक्ट कर सकता है पॉजिटिवली एनबीसीसी इंडिया के शेयर प्राइसेस को आज. अब जाते हैं प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स पर. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेंसडे में 1% तक की बढ़त देखने को मिली थी. अब कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है फेज 1 ऑफ प्रपोज ट्रांजैक्शन जो किया है ब्लैकस्टोन ग्रुप के साथ. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. फेज 2 भी क्वार्टर के एंड तक खत्म होने की उम्मीद लगाई जा रही है. तो डेफिनेटली सम पॉजिटिव सेंटिमेंट्स कैन बूस्ट द स्टॉक टुडे. प्रीकॉल पे अगर आप देखेंगे तो आधे प्रतिशत तक की वीकनेस थी वेंसडे के ट्रेडिंग सेशन में. यहाँ पर रेटिंग्स एजेंसी इकरा ने रिवाइज करी है रेटिंग कंपनी की लॉन्ग टर्म फंड बेस्ड और लॉन्ग टर्म लोन को BBB से BB प्लस से बढ़ा दिया है, स्टेबल आउटलुक दिया है. तो एक रिवर्सल ऑफ ट्रेंड ऑन द स्टॉक प्राइसेस मूवमेंट इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑन दिस स्टॉक ऑल्सो टुडे. आगे बढ़ते हैं और JSW के स्टॉक को देखते हैं. दोबारा से मेटल काउंटर्स पे काफी अच्छा अट्रैक्टिव मूव देखने को मिला था वेंसडे के ट्रेडिंग सेशन में. JSW स्टील 3.25% तक की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था. अब देखते हैं कि क्या खबर है. तो क्रूड स्टील प्रोडक्शन जो कि फरवरी में आया है वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है. तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि स्लाइट डाउनटिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लगातार जो फंडामेंटल्स हैं वो कंपनी के काफी स्ट्रांग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कमोडिटी प्राइसेस ने अक्रॉस द ग्लोब काफी मेटल स्पेस को सपोर्ट प्रोवाइड दिया है. तो देखना ये होगा कि ये इंडिविजुअल जो खबर है कंपनी को इंपैक्ट करती हुई क्रूड स्टील का, डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन का, वो कितना इंपैक्ट करेगी स्टॉक मार्केट प्राइस को. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एस्ट्राजेनेका फार्मा के स्टॉक प्राइस के लिए क्या खबर है. एक फ्लैटिश टू नेगेटिव बायस के साथ यहाँ पर ट्रेड हमें वेंसडे को देखने को मिला था. अब कंपनी को देखेंगे तो इंपोर्ट और मार्केट परमिशन मिल चुकी है CT20 से, DCGI से. तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर है, क्योंकि ये जो CT20 का परमिशन होता है ये नए ड्रग्स के लिए होता है. तो डेफिनेटली न्यू ड्रग्स को अगर परमिशन मिलती है तो कंपनी के लिए प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ते हैं. तो यहाँ पर आप एक रिवर्सल या फिर अप ट्रेंड जरूर एस्ट्राजेनेका फार्मा के स्टॉक प्राइस पर आज के सेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं.
आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्राइमरी मार्केट स्पेस जो कि लगातार बजिंग एक्शन दिखा ही रहा है, आज भी आपके लिए एक नया आईपीओ खुलता हुआ नजर आएगा। अगर आप आईपीओ स्पेस में नए अपॉर्चुनिटी स्काउट कर रहे हैं तो यहां पर खबर देख सकते हैं। अनुपम रसायन इंडिया का इशू आज ओपन अप होगा। इसका जो प्राइस बैंड है 553 टू 555 रुपीज पर शेयर है। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे एंकर इन्वेस्टर्स से 225 करोड़ कंपनी ने ऑलरेडी जुटा लिए हैं। आज ये इशू ओपन होगा, मार्च 16 को बंद होगा। ये कंप्लीटली फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स भी है। 760 करोड़ रुपीस का इनिशियल शेयर सेल है, तो डेफिनेटली इस पर आप नजर रख सकते हैं। आपको इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना है या नहीं, ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय है, एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, ये सभी व्यू पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे money9.com पर भी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के स्टॉक रिकमेंडेशंस क्या हैं। आज के लिए अगर आप इंट्राडे के लिए या पोजिशनल ट्रेड्स के लिए कोई ट्रेड्स ढूंढ रहे हैं तो जय ठक्कर की तरफ से फार्मा स्पेस में डिविज लेबोरेटरीज पर खरीदारी की राय है। टारगेट प्राइस उन्होंने 3700 का दिया है ऊपर में। स्टॉप लॉस आप 3450 का लगाकर चल सकते हैं। 1% तक की बढ़त हमें देखने को मिली थी वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में। आगे बढ़े तो लार्सन एंड ट्रूब्रो इन्फोटेक, यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 6% तक का स्ट्रॉन्ग मूव हमें वेडनेसडे को दिखा था। यहां टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है 4400 रुपीज तक का ऊपर में, और 4035 का आप स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड्स के लिए अगर आप देखेंगे तो एफएमसीजी स्पेस में हिंदुस्तान यूनिलीवर पर भी उनकी पॉजिटिव राय है। 2300 तक का टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस आप 2195 का इस स्टॉक पर लगाकर चल सकते हैं। 1.5% तक की मजबूती वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में और तेजी यहां पर देखने की या उम्मीद कर रहे हैं जय ठक्कर। आगे बढ़े तो चंदन तपड़िया की तरफ से जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वहां से राय यह आई है कि कमेंस इंडिया पर आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट प्राइस आप अपना रखिए 930 रुपीज का, वहीं स्टॉप लॉस 855 का लगा सकते हैं। 3% तक के आसपास की यहां पर तेजी हमें ऑलरेडी वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में दिखी थी। आगे बढ़े तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज आईटी स्पेस लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से। अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल्स को भी बीट करता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली रुपये अप्रिसिएशन का थोड़ा बहुत इंपैक्ट यहां देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल जो अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन है वो बॉय कर रही है आईटी स्पेस को। और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सिक्लिकली एक नया सेक्टर दोबारा से डिफेंसिव के ऊपर फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो टारगेट प्राइस आप यहां पर 1035 का रखें। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 965 रुपीज का। 1.5% तक के आसपास की मजबूती हमें इससे पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली थी। आखिरी जो स्टॉक है वो स्टॉक लगातार मोमेंटम में है, वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी रहता हुआ आ रहा है, और आप अल्ट्राटेक सीमेंट का टॉप गेनर्स में लगातार नाम सुन भी रहे होंगे। 1% तक की तेजी हमें वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में भी दिखी थी। यहां टारगेट प्राइस आप 7050 का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए आप 6600 का। तो यहां पर भी 1% तक की बढ़ती है, और चंदन का मानना है यहां पर और तेजी की भी वो उम्मीद कर रहे हैं। तो 6 स्टॉक पिक्स आपको मिल चुकी है आज के ट्रेडिंग सेशन को प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के साथ शुरुआत करने के लिए। लेकिन किसी भी स्टॉक रिकमेंडेशन पर अपना फोकस करने से पहले या फिर खरीदारी करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। चलिए इसी खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन हमारा लगातार मार्केट का ओपनिंग एक्शन और उसके पूरे दिनचर्या का एक्शन जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ Money9 पर।